Hello students of Standard 11, Learning Economics, Chapter 8, Economic Reforms, full session. Topics of the session for the day are Introduction, Privatization, Process of Privatization, Foreign Investment in India, Types of foreign investment, which includes foreign institutional investment and foreign direct investment. Then we'll be learning nature of foreign direct investment and finally India's trade policy. So these are the topics that we are going to go through today. And so to begin this particular session, the first thing that we'll be coming to know about is introduction of economic reforms. The planners of independent India faced challenges of social and economic development. As we have learned in last chapter that so many difficulties were faced by India because while we gained the independence, before that the Britishers were ruling our economic condition, our country, who destroyed our total economic condition and the prestige, the richness, the prosperity of our country was demolished. And because of that, so many things again to rebuild was planned, which was little challenging but was accepted and make into practice. For this reason, they adopted the mixed type of economic system which led greater emphasis upon socialist pattern of planning. And because of that, they had adopted so many mixed form where solely the people are working for it. Politically also they had their contribution, means private firms were also there, government firms were also there, so that the working pattern of the country can be innovated more and more, but with certain limitations. And with that they made assured that the economic status of the country might get better than the before. However, by the 80s, many experts felt that the strategies of planning adopted from 1947 to 1990 failed to attain the goals of economic growth and development, as they proposed several state imposed regulations on economic activities. They tried very hard to improvise the economic condition, but certain limitations were making them impossible to achieve the objectives of making the economic status as such that the condition of the country can be improvised, can be made to a level where every facilities are available and people who lives here at least can fulfill their basic requirements as per the needs. Besides, in the early 19s, the International Monetary Organization, guided by the developed nations of the world, imposed a precondition for providing further monetary assistance to India, that India must reform its economic policy by reducing excessive control on economic functioning. So, when there was no change seen in the economic condition of the country, then the monetary organization, the financial institutions of the world taken a decisions regarding what about assisting them with the help of money, but the excess control over the business cycle will be
नीड टू गेट कंट्रोल। मतलब हद से ज्यादा जो इन लोगों ने रूल्स रेगुलेशंस इम्प्लाई कर रखे थे कि इस पर्टिकुलर लिमिटेशंस तक ही इन्हें जो है ट्रेडिंग करनी है, इनको बहुत सारी लिमिटेशंस अडेप्ट करनी है, जो पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ कमोडिटीज है उसी में वर्क करना है, किसी भी इंटरनेशनल लेवल पे हमें बहुत ज्यादा वर्क नहीं करना है, इन सारी चीजों को रिड्यूस कर दिया गया। उन लोगों को अपॉर्चुनिटीज देने के लिए कहा गया ताकि ये लोग अपने आप को थोड़ा एक्सपांड कर सके, इकोनॉमिक कंडीशन को और ज्यादा पहले से बेटर बना सके। देयर वॉज अ सीवियर बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट एंड इंडिया हैड टू बोरो फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। अब इसके अंदर प्रॉब्लम मेजर क्या आ रही थी कि हमें पता है कि जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था हमारी कंट्री का वो बहुत ज्यादा कम था, इसलिए क्योंकि हम बाहर से गुड्स ज्यादा मंगवा रहे थे, हमारे पास इतनी फैसिलिटीज नहीं थी कि हम गुड्स को अपने यहाँ पर ही प्रोड्यूस कर सके, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह है वहां से जो हमारा डेट है, हमारा जो ओवरऑल लोन है, वो क्राइटेरिया बहुत ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा था, विच वॉज अगेन अ वेरी बैड ड्रॉबैक फॉर द कंट्री। बैलेंस ऑफ ट्रेड इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट showing a country's expenditure on imports and income from exports। तो अब बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जहां हमें ये पता चलता है कि हमने ओवरऑल जो भी गुड्स है वो कितने इंपोर्ट किए हैं और कितने एक्सपोर्ट किए हैं। अगर हमारा जो गुड्स है फाइन इंपोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट से, तो मतलब हम डेफिसिट, हम पैसों की कमी और बाकी हमारे कंट्री की जो प्रोडक्शन है उसमें कमी फेस कर रहे हैं। और अगर हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है फाइन, तो हम सरप्लस, ठीक है, हम बेनिफिट इनकम जनरेट कर रहे हैं क्योंकि हमने एक्सपोर्ट ज्यादा किया है। Thus, since 1991, India reformed her economic policies for which necessary institutional and regulatory changes were also brought about। So 1991 के बाद कुछ ऐसे पर्टिकुलर स्टेप्स वगैरह है जो इकोनॉमिक पॉलिसीज में इंक्लूड किए गए जो जरूरी थे, इंस्टीट्यूशनल के हिसाब से भी, रेगुलेशंस वगैरह के हिसाब से भी, ताकि कंट्री के जो इकोनॉमिक स्टेटस है उन सारी चीजों में चेंजेस लाया जा सके। क्योंकि अगर चेंज की बात नहीं करेंगे या चेंजेस नहीं लेके आएंगे तो इंडिया का जो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है, इकोनॉमिक स्टेटस है, फाइनेंशियल स्टैंडर्ड है, उसके अलावा जो पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें जो लोग फेस कर रहे हैं वो डे बाई डे और ज्यादा इंक्रीज होता जाएगा, जिसके वजह से कंट्री की हालत बहुत खराब हो जाएगी। So many steps were taken by the government, by the institutions of finance department, economic department, ताकि कंट्री के जो हालात है, कंट्री का जो ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटस है, कंट्री के जो डिपेंडेंसी है दूसरी कंट्रीज पे, उसे रिड्यूस किया जा सके, कंट्री को ये ऑप्शन दिया जा सके कि वो एक लिमिट से भी ज्यादा एक्सपांशन कर सकते हैं, लोगों के साथ जुड़ सकते हैं कि वहां पर भी वो ट्रेडिंग वगैरह कर सके। वन ऑफ द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू नो अबाउट इज प्राइवेटाइजेशन। Privatization means process of introducing private ownership in publicly owned enterprises and increasing the size of private sector. So what is privatization? It is a process where certain government institution can be converted into private ownership. So many changes will be made in the public institutions, public enterprises, public firms, which will be converted into private so that they can use their power, their finance in more better way to improvise the condition of the country. In India, the public sector enterprises are owned and managed by the state, that is government. Privatization means process of transferring ownership of economic enterprises from public sector to private sector, either partially or fully. So हमें एक चीज जो बहुत फेमिलियर है वो ये है कि मेजॉरिटी ऑफ सेक्शन फाइन, जो लोगों की डेली बेसिक्स नीड्स वगैरह है उसको सबसे ज्यादा जो मैनेज करता है हमारी कंट्री में वो गवर्नमेंट ही है। फाइन, उनका पावर, उनका कंट्रोल है उन सारी चीजों में। बट इन्हीं प्राइवेटाइजेशन का मतलब यही है कि इन्हीं चीजों को, इनकी जो ओनरशिप है वो प्राइवेट सेक्टर में, मतलब पब्लिक ओनरशिप को प्राइवेट सेक्टर में। अब इसके अंदर कंडीशंस ऐसी आती है कि या तो वो पूरा का पूरा जो पब्लिक एंटरप्राइज है उसे प्राइवेट में ट्रांसफॉर्म कर देंगे 100%, या फिर
कुछ पर्टिकुलर उसका हिस्सा ही प्राइवेट में होगा, बाकी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा। दोनों ही ऑब्जेक्टिव्स पे वो लोग वर्क करते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव्स ये लोग बहुत सारे मेजर एम्स को अचीव करने के लिए करते हैं, ताकि लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो, उनके पास इनकम जनरेट करने की हो, उनका जो अर्निंग, जो जनरली प्राइवेट सेक्टर का जो मोटिव होता है वो है प्रॉफिट अर्निंग, क्योंकि गवर्नमेंट को वेलफेयर करनी होती है, गवर्नमेंट को ऐसे ऑप्शंस क्रिएट करने होते हैं कि वो लोगों के फायदे के। पर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ऐसा नहीं सोचती, उनका मेजर मोटिव है कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज their motive, but the major motive of them is also to earn profit while doing the business. सो इससे वो उसी पर्सपेक्टिव पे सोचते हैं और नए नए ऑप्शंस लाके इकोनॉमिक स्टैंडर्ड को इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट विल बी लर्निंग अबाउट प्राइवेटाइजेशन इज प्रोसेस ऑफ प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन कैन टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग वेज। कुछ तरीके हैं जिससे प्राइवेटाइजेशन को अचीव किया जा सकता है, पब्लिक सेक्टर्स को, पब्लिक एंटरप्राइजेस को प्राइवेट में ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। द फर्स्ट वन इज थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट। थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट में जनरली क्या होता है, जितने भी गवर्नमेंट फर्म्स या एंटरप्राइजेस वगैरह होती है वो टोटल अपने जितना भी उन लोगों ने फाइनेंस अपने ऑर्गेनाइजेशंस में लगाया हुआ है वो वापस बैकआउट कर लेती है, मतलब इन्वेस्ट किया हुआ है उसे डिसइन्वेस्ट कर देती है, मतलब अपने पैसे, और पूरा का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है, एंटरप्राइज है, फॉर्म है, व्हाटसोएवर इट माइट बी, वो प्राइवेट हाथों में दे देती है। By reducing the number of areas reserved for investment only by the public sector and opening them for investment by the private sector। और कुछ ऐसे सेक्टर्स जो ऐसा है या लोगों के दिमाग में है कि ये गवर्नमेंट का ही हो सकता है या गवर्नमेंट का ही इन्वेस्टमेंट उसमें हो, उसे भी चेंज कर देना, उस जगह पे अपना कंट्रोल हटा के प्राइवेट सेक्टर्स को अपॉर्चुनिटी देना कि वो भी इन पर्टिकुलर सेक्टर्स पे काम कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, नई चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं और लोगों को अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर सकते हैं ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑफ अर्निंग इनकम, ऑफ ब्रिंगिंग फैसिलिटीज फॉर द कंट्री, ऐसी सारी चीजें। एंड बाय इस्टेब्लिशिंग पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बिजनेस, या फिर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या एंटरप्राइजेस वगैरह या बिजनेस शुरू करना जहां पर पब्लिक और मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट अथॉरिटीज दोनों साथ मिलके काम कर रहे होते हैं, ना कि अलग अलग। दोनों अपना मर्जर क्रिएट करते हैं कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स में और अकॉर्डिंगली काम कर रहे होते हैं। ऐसे बहुत सारे अलग अलग सेक्टर्स होते हैं जहां पर दोनों मिलके काम कर रहे होते हैं। दे बोथ अर्न फॉर देमसेल्व्स टू, फॉर द welfare of the country too. So let's learn about the meaning of disinvestment in India. What is actually the disinvestment that is being regarded as? Disinvestment means a process where the state reduces its share of investment in a public enterprise or draws back its investment completely by selling its share to the private sector. अब disinvestment क्या है? या तो जो भी स्टेट अथॉरिटी है या गवर्नमेंट है वो अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसे कम कर देती है, ठीक है, जो भी पब्लिक एंटरप्राइजेस वगैरह है, या पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट जो है वो वापस ड्रॉबैक कर लेती है और जितना भी इन्वेस्टमेंट वगैरह है वो पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर को कंपनी जो है उसे ही हैंड ओवर कर देती है। मतलब अब इसको जो भी देखेगा या उसको मूव ऑन करेगा वो प्राइवेट सेक्टर ही करेगा। Thus, the process by which the state disinvest from public enterprise is called disinvestment. So, what is actually disinvestment? It is a process of deinvesting. Deinvesting what? The public enterprises is being almost or totally converted into private sector only. They disinvest their amount from that particular enterprise and sell it totally to the private owners. This is how the disinvestment is being done. We have certain process of disinvestment in India. The following two aspects are important to understand the process of disinvestment. These two particular processes are there majorly which is being adopted for disinvesting in India. First one is sell all the shares of the state in a public enterprise to प्राइवेट सेक्टर विच इज कॉल्ड कंप्लीट डिसइन्वेस्टमेंट। कंप्लीट डिसइन्वेस्टमेंट क्या है कि जितना भी उस कंपनी का शेयर था वो पूरा का पूरा प्राइवेट सेक्टर को हमने दे दिया, मतलब
गवर्नमेंट का उसके ऊपर कोई रोल नहीं है, उसके अंदर कोई शेयर ही नहीं है। जो भी शेयर है अब तो हम इसे क्या कहते हैं, कंप्लीट डिसइन्वेस्टमेंट। मतलब गवर्नमेंट ने जितने भी पैसे इन्वेस्ट किए थे इस ऑर्गेनाइजेशन में, पूरा का पूरा ड्रॉबैक कर लिया है और अब इसको पब्लिक सेक्टर जो है उसे प्राइवेट सेक्टर को टोटली सौंप दिया है, मतलब दे दिया है। द नेक्स्ट प्रोसेस इज sell some shares of the state in public enterprise to private sector, for example 29% or 49%, which is called partial disinvestment। मतलब थोड़ा सा हिस्सा या तो 29% या 49% ही प्राइवेट सेक्टर को दिया और बाकी का पूरा किसके हाथ में है अभी भी? कौन इसे होल्ड कर रहा है, कौन इसे अभी भी रन करेगा? दैट इज गवर्नमेंट ओनली। कुछ हिस्सा इसलिए देते हैं कि इन्वेस्टमेंट आएगा तो वो लोग अपॉर्चुनिटीज वगैरह के बारे में सोच सकेंगे, वो लोग बिजनेस को जो एक्सपांड करने का सोच रहे हैं वो सारी चीजें सोच सकेंगे। तो कुछ हिस्सा ही प्राइवेट सेक्टर में होता है, बाकी पब्लिक सेक्टर में, मतलब गवर्नमेंट ही उसे होल्ड कर रही होती है। बट इट हैड अगेन अ सिमिलर प्रोसेस, दैट इज इफ less than 51% share are transferred to private sector, then it is called minor disinvestment। अगर 51% से कम जो है प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाता है तो हम उसे माइनर डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब 51% से कम है, इट कैन बी 49 और एनीथिंग। और अगर 51% से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर को हम दे देते हैं देन इट इज कॉल्ड मेजर डिसइन्वेस्टमेंट। मतलब या तो कुछ छोटा सा हिस्सा गवर्नमेंट अपने पास रख रही है या फिर मेजर हिस्सा अपने पास रख रही है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन गवर्नमेंट जो है सिलेक्ट कर सकती है। दे हैव द राइट ऑफ इट टू डू एज सच। उसके अलावा बिसाइड्स owning public enterprises, the state also held control over certain areas of investment. Certain areas of strategic importance and public utility services were not open for investment by the private sector. However, after privatization in 1991, most of these areas were declared open for investment by the private sector। कुछ हिस्से तो वो लोग ऐसा कर रहे हैं, बट बहुत सारे ऐसे सेक्टर भी थे जहां पर ये मानना था कि सिर्फ गवर्नमेंट ही उसे रन कर सकती है, गवर्नमेंट को ही राइट है उन सारी चीजों को करने का। बट 1991 में जब इकोनॉमिक पॉलिसीज वगैरह वापस बनाई गई, डिक्लेयर की गई, तो प्राइवेट सेक्टर को भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स है जो दिए गए जहां पर उन्हें पूरा राइट था क्या, इन्वेस्ट करने का। कौन सा? बैंकिंग, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन आर नाउ ओपन फॉर प्राइवेट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब ना ही यहाँ पर सिर्फ जो कंट्री की पब्लिक है वो इन्वेस्ट कर सकती है, बट उसके साथ साथ अगर कोई फॉरेन कंट्री आके इन्वेस्ट करना चाहती है तो भी कर सकती है। एज बैंक के लिए हमारे पास एग्जाम्पल है कि वी यूज टू हैव ओनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जनरली बहुत सारे या तो स्टेट बैंक्स वगैरह होते थे या इसी टाइप का उनके पास था, बट अब हमारे पास नंबर ऑफ प्राइवेट्स ऑफ बैंक्स है, सच एज ICICI, वी हैव HDFC, वी हैव एक्सिस बैंक, वी हैव सो मेनी अदर बैंक्स। एजुकेशन सेंटर का भी वही है, नंबर ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से ज्यादा हमारे पास प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। कम्युनिकेशन में वी यूज टू हैव ओनली BSNL, but now we have so many other options such as Airtel, Vodafone, so many things are there as such। ट्रांसपोर्टेशन में वही है कि जहां तक गवर्नमेंट लिमिटेशंस में थी, अब हमारे पास उसमें भी मेजर ऑप्शंस वगैरह अवेलेबल है। तो दिस इज हाउ दे हैड ट्रांसफर द अपॉर्चुनिटी, ताकि लोगों के पास फैसिलिटीज यूज करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हो, वो सिर्फ एक जगह स्टक ना हो जाए कि अगर ये ऑप्शन हमारे सामने क्लियर नहीं हुआ तो आगे हमारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं। जितना आप प्राइवेट सेक्टर को ऑप्शंस दोगे उतना ही वो पब्लिक के लिए भी ऑप्शंस क्रिएट करके देगी। बट नाउ ओनली द एरियाज ऑफ एटॉमिक एनर्जी, certain minerals related to atomic energy and railways are reserved for investment by public sector। but till the date एटॉमिक एनर्जी या उसमें जो भी मिनरल्स वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है या रेलवेज, ये अब भी गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। इसका राइट किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस वगैरह को नहीं दिया गया है। किसी भी प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज फर्म को ये राइट है ही नहीं कि वो कोई भी छोटा बड़ा इन्वेस्टमेंट एटॉमिक एनर्जी या उससे रिलेटेड जो भी मिनरल्स वगैरह है, क्योंकि ये प्राइवेट हो जाता है। अगर ये पब्लिकली बनना शुरू हो जाएगा
तो कंट्री को बहुत रिस्क क्रिएट हो सकता है। तो ये सारे राइट्स है ही नहीं। और रेलवे एक ऐसा ट्रांसपोर्टेशन है जो मैक्सिमम यूसेज में आता है फॉर द पब्लिक। अगर वो भी प्राइवेट हाथों में चला जाएगा और अगर उसके फेयर वगैरह इंक्रीज हो जाएंगे तो इट विल बी अगेन अ ग्रेट ड्रॉबैक फॉर द कंट्री। तो इसका कंट्रोल आज भी गवर्नमेंट के पास है। उसके अलावा मेजॉरिटी सेक्टर जहां पर हम प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं, दैट इज रोड ट्रांसपोर्ट एंड ऑल, उसके बाद फिर हम एयरप्लेन्स वगैरह की बात करते हैं, तो इन सब का राइट जो है ना ही सिर्फ गवर्नमेंट बट उसके साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर्स है उन्हें भी इन्वेस्ट करने का टोटल राइट है। After independence, there was a significant rise in the number of public sector enterprises under the central government. After 1991, they did not rise significantly. On March 31, 1951, there were 5 public sector enterprises under central government, which became 233 in 1990 and 217 in 2010 and were around 300 in 2015. सो डे बाय डे इनमें भी वेरिएशंस, क्योंकि जैसे ही इंडिपेंडेंस वगैरह आया बहुत सारे मेजर सेक्टर्स वगैरह वो सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में थे। बट जैसे ही 1991 में बहुत सारे वेरिएशंस वगैरह आए, धीरे धीरे कई पब्लिक सेक्टर्स को प्राइवेट सेक्टर्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, जिसके वजह से नंबर ऑफ रेशियो इंक्रीज एंड डिक्रीज होते रहे। इंक्रीज और डिक्रीज इसलिए क्योंकि जैसे ही गवर्नमेंट ये अपॉर्चुनिटी लेती है कि उन्होंने कुछ पर्टिकुलर हिस्सा या फिर कोई पर्टिकुलर कंपनी या एंटरप्राइजेस पूरा प्राइवेट में दे दिया, उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। दे गेन मनी आउट ऑफ इट, क्योंकि उन्होंने सेल कर दिया, उसके लिए वो चार्ज कर रहे हैं, दे हैव, तो वो अब किसी और चीज में इन्वेस्ट करेंगे और वहां पर अपॉर्चुनिटीज गेन करेंगे। तो गवर्नमेंट के पास भी ऑप्शंस जो है डे बाय डे क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ डिस इन्वेस्टमेंट from old enterprises continues while the state may also set up new enterprises. As I told you कि अगर old enterprises में जो गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट कर रखा था उसे वो क्या कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं। किसे दे रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर्स को। तो अब उनके पास ऐसे ऑप्शंस है, अपॉर्चुनिटीज है, उनके हाथ में फाइनेंस है। उस फाइनेंस को वो न्यू एंटरप्राइजेस को ओपन करने के लिए, न्यू एंटरप्राइजेस को लाने के लिए इन्वेस्ट करेंगे, जिससे वो बहुत सारे और क्राइटेरिया क्रिएट कर सकते हैं फॉर द पीपल, फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। दिस इज हाउ दे ट्राई टू ब्रिंग चेंजेस इन द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री। But with all such things, we had come about to know about foreign investment, which is again a very needful thing for the country, क्योंकि foreign investment जितना country में आएगा उतना ही country को benefit है। Generally, foreign investment became an important component ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि सिर्फ अगर हम अपनी ही कंट्री तक लिमिटेड रहेंगे, वहीं तक अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, एक्सचेंज भी उसी लिमिटेशंस तक है, तो हमें एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिलता है। हम चाह के भी जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं बहुत लिमिटेड क्वांटिटीज में करनी पड़ेगी और यहीं तक सेल करना पड़ेगा, एंड पीपल विल नॉट डिमांड अगेन एंड अगेन फॉर दोज प्रोडक्ट। बट जहां पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह की बात आती है, पैसा आएगा, टेक्नोलॉजीज आएगी, सर्विसेज आएगी, बहुत सारे एसेंशियल गुड्स वगैरह है वो एक्सचेंज होंगे, इससे कंट्री को बहुत सारा बेनिफिट होता है। अंडर अ रिलेटिवली क्लोज्ड एंड कंट्रोल्ड इकोनॉमी, एक्सेसिव फॉरेन एक्सचेंज नीड्स ऑफ Indian economy for purpose of investment, imports of essential goods and services, technology imports, etc., were met by borrowings from international organization and foreign governments. So this is how the government वो क्या करते हैं कि अगर उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह को कंट्री में आने देने के लिए, तो इससे बेनिफिट ये होता है कि ओवरऑल जो भी चेंजेस उनको लेके आने हैं, नए गुड्स और सर्विसेज इंप्लीमेंट करनी है, टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करनी है, फिर बहुत सारे चीज़ों को इम्पोर्ट करवा के, तो जितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा वो उतनी ही टेक्नोलॉजीज लेके आएगा, उतने ही बेनिफिट्स कंट्री के लिए लेके आएगा। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट, जो फाइनेंस है, फॉरेन फाइनेंस, ये सारी चीज़ें पॉसिबल होगी। और नई टेक्नोलॉजीज होने की वजह से गुड्स को प्रोड्यूस करने में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज वगैरह है जो जनरेट होना शुरू हो जाएगी। तो दिस इज हाउ इट अगेन बिकम्स अ गुड बेनिफिट फॉर द country. As there were several controls on foreign investments, we had to buy
more goods and technology from abroad for which we needed foreign exchange। और इससे हमें क्या बेनिफिट है, अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है और हम एक कंट्रोल के साथ उसे आने देते हैं तो एक पर्टिकुलर गुड्स के सब्स्टिट्यूट्स हमारे पास होंगे, एक पर्टिकुलर गुड्स के ऑप्शंस हमारे पास होंगे, जिससे क्या है हमारी जो नीड्स है वो हम इजीली फुलफिल कर पाएंगे, लिमिटेशंस में नहीं रहने पड़ेगी और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी मार्केट के अंदर नहीं आएगा। और जब नया इन्वेस्टमेंट वगैरह आएगा तो उससे हमारी कंट्री को बहुत सारा बेनिफिट है जो होगा। क्यों? क्योंकि लोग जो है एक लिमिटेशंस तक नहीं रहेंगे कि उन्हें सिर्फ इतना ही इन्वेस्ट करना है या फिर उनके पास गुड्स को लेके इतनी ही अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ भी उनके पास होगी, टेक्नोलॉजीज वगैरह भी उनके पास अवेलेबल होगी। दिस इज हाउ दे कैन ब्रिंग चेंजेस एंड बेनिफिट्स फॉर द कंट्री। उसके साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट के आने की वजह से भी बहुत सारे कंट्रीज में बेनिफिट्स आए, जैसे आफ्टर 1991 इंडिया अलाउड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन एरियाज इन increased proportion. Such investment would decrease our dependence on foreign borrowings as investment by efficient foreign companies will create employment, produce variety of goods, raise tax incomes and bring technology। तो ना ही सिर्फ जो हमारे पास है पर्टिकुलर एक प्रोपोर्शन में किसी चीज में इंक्रीज आया, बट इसके बाद जब उन लोगों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज दी कि वो प्राइवेट में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, वो बहुत सारा जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है कंट्री में ला सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट्स आई, हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस ऑफ गुड्स अवेलेबल थे। एज आई टोल्ड यू कि हमारे पास बहुत सारे गुड्स वगैरह अवेलेबल होते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो इनकम वगैरह है वो रेज होने लगे। क्यों? क्योंकि टैक्स कलेक्शन वगैरह बहुत ज़्यादा जो है इंक्रीज होना शुरू हो गया। तो दिस इज हाउ इट अगेन एंड अगेन ब्रॉट बेनिफिट्स फॉर द कंट्री। तो इससे हमें सिर्फ पर्टिकुलर एरिया में नहीं बल्कि हर एक एरिया में बेनिफिट्स वगैरह होने शुरू हुए। तो वी ट्राई टू मेक कंट्री मोर अवेलेबल फॉर द गुड्स दैट वाज यूज्ड बाय अस। उसके बाद टाइप्स ऑफ foreign investments were brought in the country. There were two foreign investment that were brought. First one is foreign institutional investment and the second one is foreign direct investment. इन दो प्रोसेस से कंट्री में फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाया गया। मतलब वहाँ के जो फर्म्स है, वहाँ के जो एंटरप्राइजेस है, उन्हें ये अपॉर्चुनिटीज दी गई कि वो हमारी कंट्री में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजीज ला सकते हैं, गुड्स ला सकते हैं, ताकि कंट्री के पास बहुत सारे वैराइटीज ऑफ गुड्स, एम्प्लॉयमेंट, फाइनेंस वगैरह सारी चीजें इजीली अवेलेबल हो सके। सो लेट्स लर्न about the first type of investment that was brought in our country, that is foreign institutional investment. Some foreign companies do not invest in plant and machinery in another country, say India. बहुत सारी ऐसी कंपनीज, फॉरेन कंपनीज वगैरह है जो अपनी कोई भी टेक्नोलॉजीज, कोई भी प्लांट मशीनरीज वगैरह ये सारी चीजें कंट्री में नहीं लेके आती। मतलब दे डजंट produce anything by their technologies. What they exactly do, they invest funds in financial institutions and bonds, stock, share markets in another country. वो क्या करते हैं कि जितने भी उनके फंड्स वगैरह होते हैं वो इस कंट्री के बॉन्ड्स में, स्टॉक्स में, शेयर मार्केट्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब उनकी टेक्नोलॉजीज यहाँ नहीं आ रही है, उनका सिर्फ जो अमाउंट पैसा है वो हमारी कंट्री में आ रहा है। They buy such stock from the bond share market in that country. Such investment is called foreign institutional investment, portfolio investment, and such companies have to register in India as foreign institutional investors. तो ये लोग क्या करते हैं कि कंट्री में स्टॉक खरीद के, शेयर वगैरह खरीद के यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं और ऐसी कंपनीज को यहाँ पर रजिस्टर होना पड़ता है और उन्हें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहा जाता है। क्योंकि ये फॉरेन कंट्रीज है बट इनको इन्वेस्टमेंट करने का जो राइट है वो इस कंट्री में मिलता है। मतलब अगर ये चाहे तो अपना पैसा कंट्री में लगा सकते हैं, कंट्री के किसी फॉर्म में लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो गवर्नमेंट को ही देना पड़ेगा। अगर ये किसी पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनीज में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी उन्हें वो राइट दिया जाता है कि वो उन प्राइवेट कंपनीज में इन्वेस्ट कर सके। इन इंडिया दे कैन इन्वेस्ट अप टू अ लिमिट स्पेसिफाइड बाय रूल्स। एक लिमिटेशंस उन्हें दी जाती। ऐसा नहीं है कि जितना मन वो उतना इन्वेस्ट करे, क्योंकि फिर उतना ही शेयर उन लोगों के होल्ड में चला जाता है, विच कैन बी अगेन
अ प्रॉब्लम फॉर द कंट्री। तो एक लिमिट सेट की जाती है कि इस हद तक जब भी फॉरेन इंस्टीट्यूशन चाहे वो इन्वेस्ट कर सकती है। दे हैव नो डायरेक्ट स्टेक इन द मैनेजमेंट ऑफ द होम कंपनी। उनका कोई राइट नहीं होता है, वो यहाँ पर अपना होल्ड या पोजीशन नहीं ले सकते। हेंस फाइनेंशियल कैपिटल कम्स टू द होम कंट्री थ्रू द स्टॉक मार्केट। मतलब वो डायरेक्ट किसी कंपनीज को ओ वगैरह नहीं कर रहे हैं, यहाँ जो जरिया है वो है स्टॉक मार्केट। वो सिर्फ शेयर्स खरीदते हैं और कंपनी का शेयर्स के थ्रू हिस्सा बनते हैं, ना कि डायरेक्ट पार्टनर ऑफ एनी कंपनी दैट इज बिंग होल्ड इन द कंट्री। This type of investment comes to the home country in a very short span of time when foreign companies buy shares of home country in large amounts, and it can also leave the home country in an equally short span of time when foreign companies sell the home country's share in bulk। मतलब जितनी जल्दी ये कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, और वो भी बहुत सारे अमाउंट से, ऐसा नहीं छोटा मोटा अमाउंट ही इन्होंने इन्वेस्ट किया होता है, बहुत अच्छा खासा अमाउंट इन्होंने इन्वेस्ट किया होता है, बट बहुत शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जितने शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये इन्वेस्ट करते हैं, उतने ही शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में ये डिसइन्वेस्ट भी कर सकते हैं। एक साथ जितना बल्क में शेयर्स खरीदा है, उतने ही बल्क में उसे सेल करके वापस कंट्री को छोड़ के चले जाते हैं। हेंस फंड्स टेक अ फ्लाइट इन एंड आउट ऑफ द कंट्री easily, and thus this is considered to be a risky and unstable kind of foreign capital। सो इसका मतलब एकदम से शॉर्टर पीरियड में आना और जाना लगा रहता है। जितनी जल्दी ये यहाँ पर जो है लैंड करते हैं, उतना ही जल्दी टेक ऑफ भी कर जाते हैं। जो कंट्री के लिए क्या है, एक तरह से फायदा भी है कि इन्वेस्टमेंट आया, बहुत सारे चेंजेस वगैरह ला सकते हैं, बट उतना ही रिस्क उस कंपनी पे बना रहता है कि कभी भी वो अपने पैसे डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और उन्हें उस चीज के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि वेन एवर दे विल बी आस्किंग फॉर देयर इन्वेस्टमेंट टू टेक बैक, तो कंट्री को प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि उनका इन्वेस्टमेंट उन्हें वापस पूरा दे दिया जाए। देन वी हैव द वे ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। When the home country invites capital by allowing foreign investors companies to produce and sell directly in India, such investment is called foreign direct investment। मतलब अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि वो डायरेक्टली, मतलब वो खुद का कंपनी भी स्टैब्लिश कर सकते हैं, ना ही सिर्फ पैसे लेके आते हैं, बल्कि टेक्नोलॉजी, अपने रिसोर्सेज, सब चीजें यहाँ लेके आते हैं एंड अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पर टोटल इन्वेस्टमेंट, रिसोर्सेज, सब चीज उनका होता है, सिर्फ वो यहाँ पर जगह या फिर यहाँ के लेबर्स यही सारी चीजें यूज कर रहे होते हैं। इन FDI, foreign companies directly set up their business in India by constructing their plants, bringing in technology and producing, or by collaborating with Indian companies to do so। वो इंडियन कंपनी के साथ भी कोलैबोरेट होती है, या फिर खुद का पूरा बिजनेस सेटअप करती है, जहां पर वो अपने खुद का प्लांट सेटअप करते हैं, टेक्नोलॉजीज वगैरह लेके आते हैं, या फिर इंडिया के साथ कोलैबोरेट होके यहाँ का जो भी काम वगैरह है उनके साथ मर्ज होके कर रहे होते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज की एग्जाम्पल हमारे पास है, जिससे हमें ये पता है कि चीजें मे बी यहाँ प्रोड्यूस होती है, वहां जाके मर्ज वगैरह होती है, वहां पर प्रोड्यूस होती है, यहाँ लाके मर्ज की जाती है। ऐसे इन लोगों का पूरा जो ट्रांजैक्शंस है उसे सेटअप किया जाता है, उस तरह से यहाँ पर लाया जाता है। जैसे अब अगर हम बुलेट ट्रेन का एग्जाम्पल ले लें, तो बुलेट ट्रेन क्या है, पूरा का पूरा जो इन्वेस्टमेंट है किसका है, जापान का। मतलब उन्हीं के लेबर्स है, उन्हीं के रिसोर्सेस वगैरह है, सब बस कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। फैसिलिटी कहाँ के लिए अवेल की जा रही है, फॉर द कंट्री लाइक इंडिया। इंडिया में लाया गया है, उसमें इन्वेस्ट किया गया है, उसे प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। मतलब फिर आगे जाके क्या होगा कि कुछ पर्टिकुलर हिस्सा कंट्री को मिलेगा एज अ प्रॉफिट शेयर, और बाकी का हिस्सा जो है उस कंट्री को मिलेगा। इससे उससे जो भी टेक्नोलॉजीज वगैरह सब ली गई है उसका पे ऑफ भी हो जाएगा, और कंट्री में एक फैसिलिटीज अवेलेबल भी हो जाएगी। ऐसे ही कई कार की कंपनीज है, कई क्लोथ्स की कंपनीज है, देन फिर कई सारे अदर ब्रांड्स ऑफ फूड्स वगैरह है जो कंट्री में लाए जाते हैं, बनाए जाते हैं और अवेलेबल किए जाते हैं, बट दे आर फॉरेन कंट्रीज हु हैव इन्वेस्टेड फॉर द वेलफेयर ऑफ
this particular country. These companies either manage the entire business or have a say in management if they are collaborating partners. तो वो लोग जनरली क्या करते हैं, या तो वो पूरा का पूरा बिजनेस उनका होता है, उसके अंदर इंडिया का कोई रोल नहीं होता है, सिर्फ उनकी प्लेस उन्हें दी जाती है, या वो लोग एज पार्टनर कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं और आगे प्रोसीड करना शुरू करते हैं. We have certain types of nature of foreign direct investment. The nature of foreign direct investment can be stated as under. That it is a physical establishment in the form of direct investment and hence stable for ऑफ इन्वेस्टमेंट. मतलब ये दिखता है, इसकी एग्जिस्टेंस समझ में आती है कि नहीं, कोई फॉरेन कंट्री है जो हमारे यहाँ पर इस्टेब्लिश है. मैकडोनल्ड्स है हमारे पास, पिज्जा हट है हमारे पास फूड ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, फिर कार की कंपनीज है बहुत सारी हमारे पास जो यहाँ पर कार को लाके अपने आप को इस्टेब्लिश किया हुआ है. बहुत सारे और भी ऐसे मशीनरीज वगैरह है, टेक्नोलॉजीज वगैरह है जिसका इस्टेब्लिशमेंट हमारे कंट्री में किया जाता है. इट ब्रिंग्स मशीन्स, मटेरियल्स एंड वेल्थ टू द होम कंट्री. मतलब वो अपनी टेक्नोलॉजीज भी लेके आते हैं, अपने रिसोर्सेज भी लेके आते हैं, एंड विद दैट वो अपना फाइनेंस भी कंट्री में लेके आते हैं टू गेन फ्रॉम द कंट्री, to make the economic status of the country more wealthy. It brings new technology to the country. और हमारे पास इतनी सारी टेक्नोलॉजीज वगैरह अवेलेबल होती है, इतने सारे मशीनरीज है, गैजेट्स है, इक्विपमेंट्स है जो हम अब अपने काम को और इजियर करने के लिए डे बाय डे यूज कर रहे हैं. इट ब्रिंग्स अ डिफरेंट वर्क कल्चर अलॉन्ग विद इट. उनका काम करने का तरीका, उनका सोचने का पैटर्न, उनके टेक्नोलॉजीज और इक्विपमेंट्स को यूज करने का पैटर्न, उनके जो ह्यूमन रिसोर्स है उसे यूज करने का पैटर्न. तो हमारा भी जो कल्चर है टेक्नोलॉजीज के साथ अपने आप को सेट आउट करने का, उसके साथ वर्क करने का, वो कल्चर भी हम अडॉप्ट करते हैं. क्योंकि आप किसी भी कंट्री के साथ जब इन्वॉल्व होगे तो उनका फूड पैटर्न, उनका क्लोथिंग स्टाइल, उनका एक्सेंट, दैट इज स्पीकिंग स्टाइल, वो सारी चीजें डे बाय डे क्योंकि हम कनेक्टेड हो रहे हैं, वो भी हमसे सीखते हैं और हम भी उनका कल्चर जो है टोटली अडॉप्ट करते हैं. India has systematically allowed foreign direct investment, that is FDI, in increased proportion in various sectors and India's foreign exchange earnings have increased. उन्होंने बहुत अच्छे प्रोपोर्शन में FDI को वेलकम किया है और उसके साथ साथ कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, जिसके वजह से कंट्री को बहुत सारा बेनिफिट्स हो रहा है. क्योंकि कंट्री का जो फॉरेन एक्सचेंज होता है उसमें वेरिएशंस आते हैं, वो अगर यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे भी हमारी कंट्री को बहुत सारा बेनिफिट्स है जो फेस करना पड़ता है. नाउ व्हाट आर द इंडियाज फॉरेन ट्रेड पॉलिसी नाउअडेज? This policy regulates India's trade with other countries. The foreign trade policy of India always face the following challenges. बहुत सारे challenges वगैरह, क्योंकि certain limitations वगैरह उन पे डाली हुई है. उसके साथ साथ वो लोग बहुत सारी countries के साथ connect होते हैं. हर country का अपना अपना pattern होता है work करने का, अपने अपने technologies होती है, अपना तरीका होता है. तो ये सारी चीज़ों को अडॉप्ट करना और accordingly work करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है कंट्री के लिए. नीड टू कंट्रोल सर्टेन इंपोर्ट्स इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोडक्शन फ्रॉम कंपटीशन बाय फॉरेन गुड्स. मतलब फॉरेन कंट्रीज को अलाउ तो कर रहे हैं, बट इसके साथ साथ यहाँ पर जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको भी उतना ही इंपॉर्टेंस है ना. अगर हम सिर्फ इंपोर्ट पे डिपेंड होना शुरू हो जाएंगे तो जो गुड्स यहाँ बन रहे हैं उसके लिए बहुत ह्यूज कंपटीशन तैयार हो जाएगा और जनरली जो गुड्स इंपोर्ट करवाए गए हैं वही मार्केट के अंदर चलेंगे. लोकल गुड्स की वैल्यू कम हो जाएगी, विच विल बी अ ड्रॉबैक फॉर हुम, फॉर द लोकल प्रोड्यूसर ऑफ द कंट्री. Ensure enough imports of technology, machines, spare parts as well as resources to help increase domestic production and import substitution. इतना टेक्नोलॉजी या मशीन या कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह यहाँ अवेलेबल किए जाए कि यहाँ का जो प्रोडक्शन है उससे इंक्रीज किया जा सके. जो भी गुड्स वो बाहर से मंगवाते हैं उसका सब्सटीट्यूशन वो खुद की कंट्री में ही तैयार कर दे. मतलब सिर्फ उन्हें इक्विपमेंट्स या रिसोर्सेज की जरूरत है, उसकी जरूरत नहीं है कि वो लोग बाहर से गुड्स मंगवाए और यहाँ यूज करें. बेटर है कि वो खुद ही उसे प्रोड्यूस करना शुरू कर दे. कंट्रोल इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स unessential for India's development in order to save scarce foreign exchange. मतलब क्या है, जो गुड्स
बाहर से मंगवाना जरूरी नहीं है, या फिर कंट्री के लिए नीडफुल नहीं है बहुत ज्यादा, सिर्फ हम उसे बहुत सारे ऑप्शंस क्रिएट करने के लिए, या फिर कंट्री में कुछ ना कुछ सेल होता रहना चाहिए, इसलिए अगर हम उसे मंगवा रहे हैं तो उसे स्टॉप कर दिया जाए, क्योंकि इससे इंडिया का डेवलपमेंट रुक सकता है। ये डिपेंडेंसी क्रिएट हो सकती है कि हम बाहर के गुड्स पे कितने ज्यादा डिपेंडेंट है और उनके गुड्स के बिना हम काम कर ही नहीं सकते, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। दिस इज अगेन अ प्रॉब्लम फॉर द कंट्रीज इकोनॉमी। Encourage exports to earn foreign exchange in order to pay for necessary imports. इतना एक्सपोर्ट बढ़ा दिया जाए या लोगों को एक्सपोर्ट करने के लिए इतना एनकरेज किया जाए ताकि हम जो गुड्स इंपोर्ट कर रहे हैं ना उसके अगेंस्ट पे करने जैसी कैपेसिटी हमारे पास जो है क्रिएट हो सके। क्योंकि एक चीज क्लियर है, वो ये है कि व्हेन इंडियन रुपी इज कंपेयर टू डॉलर्स, पाउंड, यूरो, येन, ऐसे कोई भी अमाउंट में, तो इंडियन रुपीज की वैल्यू अलग होती है। अगर हम सिर्फ मंगवा रहे हैं तो हमें बहुत सारा पे करने को आएगा बट अर्न करने को नहीं। इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव हायर इनकम देन द expenses that is being done for asking the import in the country, तो उसके लिए भी encourage करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। Many Indian goods could not compete against the quality of foreign goods and hence increasing exports was a challenge for trade policy. बहुत सारे इंडियन गुड्स वगैरह ऐसे हैं, we can say maximum जो फॉरेन गुड्स जो बनते हैं मशीनरीज वगैरह से, उनके पास जो टेक्नोलॉजीज वगैरह अवेलेबल है उससे वो बनते हैं, उसको वो compete ही नहीं कर पाते हैं। उनकी क्वालिटी, उनका जो वे ऑफ प्रोडक्शन है वो इतना एक्सट्रोवर्ट होता है, इतना इनोवेटिव होता है कि इंडिया की गुड्स की कोई डिमांड उनके आगे होती ही नहीं है, जिसकी वजह से वो बहुत ह्यूज कंपटीशन फेस करते हैं और एक्सपोर्ट एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजना। प्रमोट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय स्मॉल स्केल सेक्टर। क्या जो स्मॉल स्केल में प्रोड्यूस हो रहा है, छोटे छोटे जो यूनिट्स वगैरह है, छोटे एंटरप्राइजेस फर्म्स वगैरह है, वहां पर जो गुड्स वगैरह प्रोड्यूस हो रहा है उसको ज्यादा प्रमोट करना कि किस तरह से बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे स्मॉल प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, डेली रूटीन प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं, सच एज इंसेंस स्टिक्स आर देयर, पिकल्स आर देयर, सो मेनी थिंग्स जो स्मॉल सेक्टर्स में प्रोड्यूस होते हैं। इतना चैलेंजिंग कर दो कि उन्हें हमारे प्रोडक्ट की जो स्मॉल सेक्टर में स्पेसिफिकली प्रोड्यूस हो रहे हैं उसे, इससे क्या है जो स्मॉल सेक्टर में काम कर रहे हैं उनके पास भी अपॉर्चुनिटीज होती है टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर and to export their goods to the other countries. The challenges of foreign trade are different from those of domestic trade as foreign trade involves foreign exchange. बहुत चैलेंजिंग होता है, क्यों? क्योंकि जब फॉरेन ट्रेड की बात आती है, डोमेस्टिक ट्रेड क्या है, यहीं आपने अपने पैसे इन्वेस्ट किए, यहीं पे कुछ टेक्नोलॉजीज के साथ आप काम कर रहे हो, गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो और उसको मार्केट में सेल कर दे रहे हो लोकली, तो जैसा भी प्रोड्यूस हो रहा है पीपल ट्राई टू। बट फॉरेन एक्सचेंज में बहुत ह्यूज इन्वॉल्वमेंट होता है, उनकी नई टाइप की टेक्नोलॉजी, उनका कल्चर, उनका वर्किंग पैटर्न, उनके रिसोर्सेज, सारी चीजों को एक्सेप्ट करना, फाइन, उनका जो इन्वेस्टमेंट है उससे एक्सेप्ट करना, वर्क करना और उसे आप अपने डेली रूटीन में लाके यूज करना बिकम्स अ ग्रेट चैलेंज फॉर द कंट्री इटसेल्फ. The foreign trade policy of India was formulated and amended from time to time to deal with the above challenges in the best possible manner. So these every policies were created and then changes as per the needs, as per the desire of the time was brought, so that any possible changes which is been occurring time to time, it can be accepted, it can be changed and improvisations can be brought, so that India not only deal within their products but they get the opportunity to export the goods, to bring new technologies to their country, to bring more financial investment for the country, for the betterment of the country, for the welfare of the country, to raise the economic standard of the country. So all such things are important to keep in mind while trading within your country or with the country that are outside our reach, because we need to get connected globally for the welfare of the country, for the expansion of the country, to bring the richness in the country again. Thank you.